So this was the question, right? Yes, sir. So we have the function in the form of mod ax plus b, and in this case the axis of symmetry is minus b by a, right? Which Yes, is sir. nothing but 2 in this case. Okay, and the value y intercept is 2, so b is equal to 2, right? That is the y intercept. So the answer is 2x, नहीं नहीं, a का वैल्यू क्या हो जाएगा? If minus b upon a is equal to 2, what is the value of a? So minus 2 upon a B. is equal to 2. So this implies a is equal to minus 1, right? Yes, sir. So the equation is f of x is equal to mod minus x plus 2, right? So Yes, sir. what is the answer? This is the correct answer. So x minus 2. x माइनस, हाँ तो ये कर दो ना आप, इसमें मॉडुलस का फंक्शन का यूज कर दिया उसने, तो अगर आप माइनस कॉमन ले लेते हो तो दिस बिकम x माइनस 2, राइट? सो दिस इज माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, एंड ये जो माइनस 1 है वो 1 हो जाएगा. सो यू कैन राइट दैट एज x माइनस 2 ऑल्सो. देखो 2 माइनस एक्स लिखो और x माइनस 2 लिखो inside modulus, that will give you same answer. Do you agree? See, Yes, 7 sir. minus 5, mod of 7 minus 5 is same as mod of 5 minus 7. Both are equal. Yes, So sir. if you write it in inside modulus function, there is no difference. Okay, now. Sir, review set 19B का Hmm. क्वेश्चन नंबर 8 400 पेज पे. Hmm. This is the question, right? Yes, sir. So in this question, before I explain you, see, I'd like to tell you, my power is interrupted. I'm on UPS right now. जो PC है मेरा, वो UPS पर है, पावर नहीं है अभी फिलहाल. ठीक है, तो Okay, sir. अगर बंद हो गया PC तो थोड़ा एडजस्ट. हाँ, Okay, sir. होप करता हूँ कि आ जाए, लाइन आ जाती है, देखते हैं. ठीक है. So the question is, by replacing mod x with x for this and minus x for x less than, so that is the definition of modulus function, right? Till here, this is the definition of modulus function. Do you agree? Yes, sir. Okay. Write y is equal to mod x plus 4 without modulus sign. वही तो करते हैं ना हम वैसे भी. देखो, y is equal to mod x plus 4, mod x plus 4. ठीक है, this is the function given to us, right? We have to graph this. We have to graph this function, Graph this. right? So what we do generally, we make function without modulus sign, right? So if y is equal to mod x plus 4, mod x is nothing but x for x greater than or equal to 0, right? That is the definition of modulus function. Yes, sir. And minus x for x less than 0. Am I right? Yes, sir. सो ये जो ये सारे ये चीज़ें खाली मैंने चेंज की है, क्योंकि वो अकॉर्डिंग टू मॉडुलस फंक्शन वी गेट दिस minus x and x. If this function is, if x value is negative, we get, we should make minus x to get positive from the negative number, and if x is greater or equal to 0, which is itself positive,
So we simply write x because x is positive number, right? So this is the definition of modulus function. Now we have to graph this. We have to graph this. So what's the problem in this case? So if you want to graph, so the axis of symmetry is x is equal to minus 4. Like, how would you graph? See, there are two different graph here. You can understand. There are two different graph. Y is equal to x plus 4. ठीक है, ये आपको ग्राफ करना है फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये आपको इस पार्ट के लिए यूज करना है, मीन्स फॉर x ग्रेटर इक्वल टू 0, फॉर दिस side, for right hand side, we have to use this graph, this function. Am I clear? Yes, sir. Okay. So let's say for x is equal to 0, what would be the value of y? That is also 0. No, that is Four. 4. That is 4. Yes, sir. If x is equal to 0, the value of y is 4, Four. right? For x is equal to 1, the value of y is Five. 5. For 2, the value of y is Six. 6. So it will go likewise, right? And for x is equal to minus 1, आ Y is गया equals to two. power आ गया. So for x is equal to minus 1, see the other function is y is equal to minus x plus 4. Do you understand? Y is equal to minus x plus 4, which is x less than 0. So if x is equal to minus 1, we have to use this function. Am I clear? We have to use this Yes, sir. function. So for x is equal to minus 1, the value of y is, Five. yes, so 5 हो गया वो. For x is equal to minus 2, 6 हो जाएगा. So six. ठीक है, तो ये कैसे हो गया ग्राफ? आप देखो अगर ग्राफ ध्यान से, सो दिस विल गो लाइक दिस. ठीक है, तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे, Yes, sir. फॉर जीरो, लेट्स से माइनस 0.01, और लेट्स मेक इट माइनस 0.1. So for minus 0.1, because if you have x is equal to 0, it will directly give you the value 4, right? Because of this function, equal to sign यहीं पर है खाली, है ना? अगर आप Yes. नेगेटिव लेते हो like minus 0.1, then we have to use this function. So for minus 0.1, what would be the value of y? That is 4.1, Yes, sir. right? 4.1, because minus of 0. Minus of minus 0.1 becomes 0.1, and if you add 4, that Yes, becomes sir. 4.1. So 4.1 will be like, if I show you, that will be here, right? It means the function is continuous. Basically what I am explaining you, we have a particular value at 0, and we have values at less than 0 also. So we can draw this complete line. ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ माइनस वन के लिए ही वैल्यू फाइंड आउट किया है. वी हैव अ वैल्यू ऑफ द फंक्शन फॉर all the values between these points also, right? So Okay, sir. therefore this is the graph of the function. देखो आप इस चीज को ऐसे भी समझ सकते थे, कुछ इसमें ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, अगर आपको थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन का आइडिया हो बेसिक. सो इफ सपोज this is the graph of y is equal to mod x. This is the graph of y is equal to mod x. Am I right? Yes, sir. So अगर इसको मुझे y is equal to mod x plus 4 ही करना है, mod x plus 4, ओके, यही अगर करना है, तो सीधी सी बात है, y का वैल्यू मतलब ये ऊपर ग्राफ शिफ्ट हो जाएगा बाय 4 यूनिट्स, है ना? y Yes, का sir. वैल्यू 4 से इंक्रीज हो जाएगा, बस इतना ही सी बात है. ठीक है, Yes, sir. चलो अभी और कौन सा So logarithm. आ जाए लॉगरिथम पे. Yes, sir.
क्या पेज नंबर है जरा बता दीजिए। सर 625। 625। आपने कैलकुलेटर का यूज करना सीख लिए क्या? यस सर, थोड़ा बहुत। बहुत बढ़िया, सब सीख लो उसमें। एक ही बार सीखना है, लाइफ टाइम के लिए यूज हो जाएगा। 625। सर इसके अंदर ग्राफ तो नहीं बनेंगे? बनेंगे ना, क्यों नहीं बनेंगे, लॉगरिथमिक फंक्शन होता है ना। साइंटिफिक है ना, बट ये ग्राफिक के अंदर बनेंगे मे बी, ग्राफ तो शायद। ये साइंटिफिक कैलकुलेटर है, यस ग्राफिकल सर। कैलकुलेटर नहीं है। नो सर। कितने का दिया हुआ है ये? सर ये मैं लाया था 900 अराउंड। हाँ तो साइंटिफिक है। ग्राफिकल ले लो, आप आईबी में ही जाओगे ना इसके बाद। यस सर। हाँ तो ग्राफिकल ले लो, वो तो करीब 10। ग्राफिकल ना एक्चुअली मिल नहीं रहा अभी। हाँ अभी कहाँ मिलेगा, अभी लॉकडाउन में सब घर में फंसे हैं। ठीक है, यस सर। तो है ना अपने पास डेस्मोस है। ऑनलाइन यस में सर। ऑनलाइन टूल्स भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। ग्राफिकल लाइक ग्राफिकल कैलकुलेटर में अवेलेबल ऑनलाइन ऑल्सो। कोई भी ऐप वगैरह में भी देख सकते हो, ठीक है, ऐसा बहुत सारे ऐप है, आप ढूंढ लो, मिल जाएगा। ओके, so we have a logarithm, and we were doing the definition, like we have just started logarithm, right? यस सर। ठीक है, चलो अभी एक दिखा देता हूँ डेफिनेशन क्या है। सी, इफ दिस इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम। ये अभी छोड़ दो इसको, आप मुझे इतना बताओ, 10⁻1 क्या होता है? 10, 10⁻2, 100। 10⁻3 is 1000, right? यस सर। So we are doing exponential function here. We are applying this kind of function a raised to x, which is exponential function। ठीक है, तो ऐसे भी कुछ होने चाहिए ना, कि ये जो वैल्यू है, हम्म, ये जो वैल्यूज है, यस सर। 1 2 3, तो अगर मैं कुछ ऐसा रिवर्स प्रोसेस करूँ, है ना, सो यस आई सर। शुड गेट दिस वैल्यूज 1 2 3, है ना। ऐसे भी कुछ होने चाहिए कि मतलब अगर मैं 10⁻, मान लो n है, एंड द वैल्यू इज लेट्स से 40, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? सर 4। हाँ तो ये तो आप बता पा रहे हो क्योंकि ट्रेंड वही दे रहा हूँ मैं। लेकिन मान लो 5⁻n है, और आ गया यहाँ पे 279, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? नहीं है ना, सिंपल नहीं है ना ये, algebraically we यस can't सर। do this directly, right? So for this cases we need another function which give us the reverse process of this to find the value of n, ठीक है, and that is called logarithmic function, और that is called logarithm। ठीक है, तो अभी आपको मैं डेफिनेशन के साथ बता देता हूँ। नाउ दिस इज बेसिकली log 10 to the base 10 is equal to 1। Okay, so this base is basically the base of the index। ठीक है, ये जो दिख रहा है आपको, इसमें बेस क्या है एंड एक्सपोनेंट क्या है? सर बेस 10 है, एक्सपोनेंट 1 है। 1 है, हाँ, और वैल्यू 10 है, ठीक है ना। तो यही चीज यहाँ पे देखो, ये बेस 10 है, विच इज नथिंग बट द बेस ऑफ दैट a raised to x, okay, and this 1 is the value, okay। So this is the definition of logarithm। Now how would you convert this into log form? So log, the base is 10, 10। right? यस सर। 100 is equal to 2, okay। Similarly, can you convert this in the form of log? सर लॉग, सर लॉग बेस 5। Log base is 5, 5 you एंड can take the 7, values here, 7 279 9 is equal to n, 10। ठीक है ना।
तो अभी Yes, ये चीज अगर आपको पता चल गया लॉगरिथम, देन यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एन एटलीस्ट बाय कैलकुलेटर, yes, sir. राइट? सो अगर सपोज ये फाइंड आउट करना है, देन एन इज इक्वल टू, राइट? अभी ये कैसे फाइंड आउट करोगे? कैन यू फाइंड आउट दिस फ्रॉम योर कैलकुलेटर? बिकॉज आई रिमेंबर दैट यू हैव टू बॉक्सेस to Yes, provide sir. base and the values also. Let Yes, me sir. know the value. Log nature 5 equal to 70. So 3.498. 3.498। तो समझे कितना इंपॉर्टेंट टूल है लॉगरिथम? बिकॉज यहाँ पे तो दिमाग घूम रहा था, वी वर नॉट एबल टू थिंक what would be the value of n directly, Yes, sir. right? Because 5 raised to what will give you 279, which is not the multiple of 5 also. 279 is not a multiple of 5. So we were not able to find the Yes, sir. values, right? So the Yes. logarithm is very important tool to figure out those values, as well as I want to let you know about the importance of logarithm. Let's say if I give you 5.7 raised to 139 into 7.9 raised to 2.5 divided by 395 raised to 7.5. I'm making it uh, as complex as I can. Okay, Yeah. 0.3 raised to 3957. See, this is like if you go by usual method to figure out the value of this fraction, like we have to put, I think, 4, 5, 6 hours to figure out this, right? Yes, sir. But the logarithm will help you to solve this in like 2 minutes or 1 minute. You can figure it out by logarithm without calculator. If you have a table of logarithm, you can directly find out the values. So this is so important tool in mathematics. So any complexity can be reduced by logarithm. Okay. Okay, fine. So let's move to now. Have you noticed this? Have you noticed this? This is the definition which I have been using here. If y is equal to a raised to x, ठीक है, थोड़ा उसको छोटा करता हूँ ताकि आप देख पाए अच्छे से, ठीक है? इफ y इज इक्वल टू a रेज टू x, ठीक है, तो देखो आप Ye- इसको आप लगाओ कैसे लॉग में कन्वर्ट करना था। लॉग बेस इज a, Yes, sir. द वैल्यू इज y Y इज इक्वल टू x, X. सो द सेम थिंग इज रिटन हियर। तो ये सिर्फ प्रैक्टिस की बात है, इस तरह से आप उसे लिख सकते हो। मैं अपना एक मेथड बता दूं, अगर थोड़ा नेसेसरी ना रहे, बता देता हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो उस तरह से लर्न करना। देखो क्या है, अगर सपोज लॉग y, let's change the parameters. If suppose log a to the base b is equal to m, हाँ, इस तरह Yes, से sir. दिया हुआ है। अभी मुझे इसको एक्सपोनेंट में कैसे कन्वर्ट करूँ, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करूँ, ठीक है? तो सीधी सी बात है, जो बेस है यहाँ पे लिख दो b रेज टू m, इस तरह से ले जाओ, एंड दैट इज इक्वल टू a, ठीक है? बस Yes, sir. इतनी सी बात है। तो थोड़ा इजी रहता है कि हाउ टू लर्न दिस थिंग्स। ओके, बट वी हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, बट समटाइम्स वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड लर्न द फॉर्मूला एज वेल टू इम्प्लीमेंट Yes, sir. quickly, right? Okay, now let's move to the graphical part of it. I think in last class we have discussed something about the graph, but आप मुझे थोड़ा हेल्प करो, फटाफट करो, सो दैट आई कैन जंप टू द एक्सरसाइज, ठीक है? अभी y इज इक्वल टू, लेट्स से, I'll not put a raised to x, I'll put
समथिंग 2 रेस टू एक्स, ठीक है। तो इसका क्या होगा ग्राफ, जल्दी जल्दी बताओ मुझे। y इज इक्वल टू 2 रेस टू, जल्दी जल्दी बताओ। कम से कम बोलना शुरू करो कि इफ x इज इक्वल टू 0 द वैल्यू ऑफ y इज 1। हाँ, कम से कम इतना बोलना शुरू कर दो। इफ x इज इक्वल टू 0 द वैल्यू ऑफ y इज 1, इफ x इज इक्वल टू 1 द वैल्यू ऑफ y इज Nice. 2, x is equal to 3 the value of y is 8, right? If Yes, x sir. is equal to minus 1 the value of y is 0.5, ठीक है ना। Yes, If sir. x is equal to minus 2 the value of y is 1 upon 4, which is again less than 0.5. So the graph of this function is basically like this. Always remember this, exponential function graph will always behave like this. It is increasing function, it will never go down below the x-axis. It will always be greater than, X-axis. no, no, yeah, above x-axis. Okay. So can you tell me the domain and range of this function quickly? Makes sense, sir. क्या इसमें दिक्कत है, आप सीधा So देखोगे। X belongs to real number हाँ, and X is not equals to 0. नहीं जीरो भी हो रहा है ना, अगर डोमेन की बात कर रहे हो तो ये तो पूरा रियल नंबर है। फॉर एनी वैल्यूज ऑफ एक्स वी हैव अ रियल वैल्यूज फॉर वाई, राइट। सो डोमेन इज ऑल रियल नंबर। कोई ऐसा है अगर x इज इक्वल टू जीरो नहीं बोल रहे हो आप, बट फॉर x इज इक्वल टू जीरो वी हैव अ वैल्यू ऑफ y विच इज 1। डू यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. आप तो ये कर दिए, यहाँ पे तो फंक्शन हमने पढ़ा है ना ऑलरेडी। सीधी सी बात है, आप सीधा x का वैल्यू फाइंड आउट करो ना, कौन कौन से x के वैल्यू इसमें पॉसिबल नहीं है। तो जैसे मैंने बताया हर एक वैल्यूज के लिए y वैल्यू है यहाँ पे। फॉर ईच वैल्यू ऑफ x वी हैव अ रियल वैल्यू फॉर y, इजंट इट। आप कोई भी x वैल्यू डाल दो, y का वैल्यू आएगा कि नहीं आएगा। आएगा सर। फिर और y रेंज क्या होता है, रेंज इज y ग्रेटर देन 0, ठीक है। y बिलोंग्स टू रियल नंबर। एंड y ग्रेटर देन 0, ठीक है। निगेटिव, y नेगेटिव नहीं हो रहा है बस। ओके। नाउ Yes. logarithmic function जो होता है, because we can convert this into log, how would you convert this into log, let me know। So log base 2 Yes, and upper part y is equals to x. y is equal to x. So this is an inverse function of the exponential function, ठीक है। log and exponential function both are inverse of each other, ये चीज आप ध्यान में रखो। तो ये क्या हो जाएगा, देखो फंक्शन जो है ये, दिस इज बेसिकली, ये हमारे टॉपिक में है आगे, इसलिए बता रहा हूँ। एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू log x to the base 2, okay। So this function can be written as f inverse x, okay। इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, f inverse x is equal to log x to the base 2। देखो सिर्फ मैंने यहाँ पे ना y चेंज किए, यहाँ पे देखो, we can, आई एम जस्ट चेंजिंग द पैरामीटर, डू यू अंडरस्टैंड। वेरिएबल चेंज कर रहा हूँ, फंक्शन वही है। फंक्शन क्या है, log y to the base 2, है ना। फंक्शन वही है, log x to the base 2, ठीक है। तो अभी इसको आप इसको ड्रॉ करने के लिए, लाइक ऑन द कॉर्डन ऑन दिस ग्राफ आई हैव कन्वर्टेड दिस वे, अदरवाइज दिस इज द इनवर्स फंक्शन डायरेक्टली, ठीक है। तो इसको अगर ड्रॉ करोगे आप, एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स टू द बेस 2, इट विल गो लाइक दिस, ठीक है। अब मैं इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा अभी फिलहाल। सो दिस विल गो लाइक दिस। So you can check this in Desmos also. I think we have already checked in the previous class, but still you can check that, because as I said, this is inverse function of each other. So if you put y is equal to x, like if you draw a line y is equal to x, it will look like mirror image of each other, ठीक है। इसे आप डाउनलोड कर लो इस पेज को। I'll come back to this page like maybe in next class।
तो आप इसको आप डाउनलोड करो, क्योंकि इसमें मैंने कुछ होमवर्क दे रहा हूँ इसमें, इस चीज़ को लेके। ठीक है, डन डाउनलोड। सर। डन ना? तो पहला होमवर्क है, इसमें आप डेस्मोस से दोनों ग्राफ चेक करोगे। ठीक है। दूसरा होमवर्क है कि इनवर्स फंक्शन जो होता है, जो हमने फंक्शन पढ़े थे, तो इनवर्स फंक्शन के बारे में थोड़ा आइडिया आप लोगे कि व्हाट इज इनवर्स फंक्शन। ठीक है, थोड़ा आइडिया यस। आप लोगे, तो ये दो चीज आप करके रखो तो थोड़ा जॉब इजी हो जाएगा मेरा। नाउ लेट्स मूव टू 31A। ठीक है, क्योंकि ये आएगा, आगे आएगा, दो तीन एक्सरसाइज के बाद आएगा। ठीक है, लेट्स मूव टू 31A। तो 31A में बहुत इजी है अभी आप लोग को, तो ये आपको इजी लगेगा काफी, क्योंकि ऑलरेडी कन्वर्ट कर चुका है आपने। तो वी हैव टू कन्वर्ट दिस एक्सपोनेंशियल फंक्शन इनटू इट्स इक्विवेलेंट logarithmic statement. Okay, so 2 raised यस to सर। 2 is equal to 4. How would you convert into logarithmic सर function? Log लॉग बेस टू raised to 4 ऑफ 4 इज इक्वल्स टू 2। 2। ठीक है, चलो ये कर दो, अभी कौन सा करो, f कर दो, k कर दो, एंड एल कर दो, फटाफट कर दो। सर सर लॉग बेस जो होगा वो 7, हाँ एंड ऊपर सर 1/7 हाँ इज इक्वल्स टू -1। हाँ, तो इसको कैसे रीड करते हैं? रीड कैसे करोगे आप? लॉग 1/7/7। नहीं नहीं, लॉग ऑफ 1/7 टू द बेस 7 इज इक्वल टू -1। ठीक है। ओके सर। हम्म, अभी ये बताओ। सर लॉग बेस 2, सोच लो सब और फटाफट बोल दो। लॉग बेस 2 बेस 2, लॉग 4 मतलब रेशियो। ऐसा, या तो ऐसे करो, लॉग इन बेस 2, लॉग इन बेस 2, ओके, 4√2 इज इज इक्वल इक्वल टू टू 2.5। 2.5। इस तरह से भी रीड कर सकते हैं। लॉग इन बेस 2 ऑफ 4√2 इज इक्वल टू 2.5। चलो अभी फटाफट बता दो एल का। सर लॉग बेस 10 लॉग इन बेस 10 इन बेस 10 ऑफ ऑफ 0.001 0.01 इज इज इक्वल टू इक्वल्स टू माइनस। -3। बस हो गया। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट पे। कर दो फटाक से, कोई ये दोनों कर दो। इसका एक्सपोनेंशियल स्टेटमेंट बताना है। तो एक्सपोनेंशियल के लिए तो मैंने आपको एक हिंट दिया हुआ है ना, इजीली किस तरह से यस करते हैं। सर। सर 1/2 की पावर 2 इज इक्वल्स टू 1/√2 नहीं नहीं, 2 raised to -1/2 इज इक्वल टू 1/√2। ठीक है, ये जो बेस है ना, ये उठा के इधर इसके ऊपर डालती है, वैल्यू इस बेस के ऊपर डालते हैं। समझे? 2 raised to -1/2 इज इक्वल टू 1/2। ये कैसे करोगे? एफ। सर √2 की पावर 2 इज इक्वल्स टू 2। हाँ बस हो गया ये। √3 की पावर 4 इज इक्वल्स टू 9। बस सिंपल है। विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर फाइंड दिस वैल्यू। अच्छा, तो ये इसका, चलो बताओ ये, विदाउट यूजिंग वैल्यू। फर्स्ट करो फर्स्ट। थैंक्स सर। हाँ, देखो इसको ऐसा ले लेते हैं, ए इज इक्वल टू लॉग 100 to the base 10, right? So if you convert it into exponential form, this will be 10 raised to a is equal to 100. So what is the value of a? सर 2। 2, right? Because 10 raised to 2 करोगे तो 100 आएगा।
आ, चलो ये बता दो बी का। First convert it into exponential form and then it will help you to find the value of a. See देखो ये a आया ना, a तो अपने को रिक्वायर्ड नहीं था, but Yes, sir. a is basically what? That a is basically this, right? तो इसका ही वैल्यू आ गया ना a, इसका ही वैल्यू 2 है। So three. हाँ So B part का three. 3, हाँ बराबर। फिर g का G का देखो log टू द बेस 10 है, yes sir. 0.001 है, इज इक्वल टू लेट से a। ठीक है, a So क्या? minus three. -3। बहुत बढ़िया। ठीक है, क्योंकि 10⁻³ है तो ए का वैल्यू हो गया -3। तो आपको ये चीज पता है क्या? एन लॉग, अगर पता हो तो फिर हम फटाफट जाएंगे। एन लॉग एम इज इक्वल टू लॉग एम टू द रेस टू एन। ये चीज सब नहीं No पता है? sir. हाँ ठीक है, चलो आगे आराम से जाते हैं। तो ये हो गया है, चलो ये करके बताओ जरा जल्दी। एल एल पार्ट। Log to rotate. So 3/2. हाँ ठीक है, कैसे किया आपने वो बताओ। So 2A is equals to 8. Root 8. एज, हाँ, So 2A is equals to root 8. 2 टू power A. टू रेस टू ए। Yes sir. Is equals to root 8. हाँ, 2 raised to A is equals to 8 raised to 1/2. 2 raised to a is equal to 8 raised to 1 by 2, which is 2 raised to 3 by 2. So a is equal to 3 by 2, है ना? Yes sir. ये चीज समझ में आ रहा है? Yes sir. So let's move to the next section of this. Rewrite as logarithmic equation. So this is fourth part. So y is equal to 4 raised to x. How would you write this in logarithmic equation? वही logarithm का definition apply कर दो. You will So get log base 4 log base 4 with base 4 y is equals to x. y is equal to x। ठीक है, d का बताओ, d का। Log with base root 3 to y is equals to x. log base root 3 x is equal to No, so y is equals to x. हम्म, y is equal to x। ठीक है, चलो ये तो समझ में आ गया ना आपको। Yes sir. तो इसका जो h पार्ट है, h, हाँ, सर इसके अंदर पूरा नीचे आएगा, जैसे log 2 into 3 y is log equal to base 2 into 3। y is equal to 2 into 3 raised to a है ना? तो Yes इसको sir. कैसे करोगे? तो y अपॉन 2 इज इक्वल टू 3 रेस टू ए। ठीक है, तो इसमें अब ऐसा कर दो, log इन बेस 3 y अपॉन 2 इज इक्वल टू ए। Okay. ठीक है, Yes sir. चलो अभी फोर्थ हो गया, फिफ्थ पे जाते हैं। रीराइट एज एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। करो, इसमें कोई भी दो तीन करो फटाफट। एफ करो, एफ।
So 5 की power t is equals to a upon 2. यस, सो ए अपॉन टी इज इक्वल टू 5 रेज टू टी। और कौन सा करना चाहते हो? आई करोगे? आई करो। So root b की power t is equals to n. रूट बी की पावर b पी इज इक्वल टू एन। ठीक है। सर जिसका h पार्ट है हाँ, सो ये ऐसा कर दो ना, इसको जी बाय 5 कर दो। ठीक जी बाय 5 इज इक्वल टू लॉग इन बेस बी ऑफ एम। सो ये क्या हो जाएगा? बी रेस टू जी बाय 5 इज इक्वल टू एम। ठीक है। है। यस सर। फिफ्थ तो हो गया, सिक्स पे आ जाते हैं। Rewrite the following making x the subject. X the subject means you have to write the equation in terms of x is equal to something. Okay, that is the meaning of x as a subject. So अभी a part बोल करता हूँ मैं यहाँ पे। a क्या दिया हुआ है? y is equal to log, कुछ है ही नहीं इसमें, भी सिंपल है। So x H is equal to 7 raised to y। and h तो अभी कौन सा कर दो आप? ये कर दो, f कर दो, f कर दो, h कर दो, जी कर दो, ये कर दो, फटाफट करो। You have to make x as a subject. X is equal to something. x is equals to 3y 3 की power y आराम से करते हैं ना, ऐसे मुझे भी नहीं 3 समझ की में तो आएगा। 6 में। log in base 2 y is equal to 3x, right? यस सर। So x is equal to 1 by 3 log y to the base 2। हो गया ये चीज, यस सर। x के फॉर्म में आ गया। चलो अभी g का बताओ। g है क्या? वो x by 2 है। y is equal to 5 raised to x by 2। Okay, यस सर। so let me know the equation. log with base 5 to y is equals Log to 2. in base 5 x by, नहीं, No sir, with y y is equal to x by 2 2। So x is equal to 2 log y y to the base 5। ओके, n कैसे करोगे? n n है कि h? h। h sir हाँ h। w is equals to log 3 to x 3 तो ये तो डायरेक्ट कर दूंगा मैं, 1/2 3 रेस टू w, बराबर है। yes sir 3 रेस टू w हो गया, 2x निकल गया तो x को 1/2। ठीक है। 1 by 2 हाँ, k ले लो। k कैसे करेंगे? 1 by 2 6 10d, so 2 raised to x is equal to 1 by 10d, so log base 2 1 by 10d is equal to x। yes sir ठीक है ना? समझ में आ रहा है? थोड़ा छोटा लिख दिया हूँ बाबू। yes sir आ रहा है। ठीक है, चलो सिक्स हो गया। सेवेंथ, सेवेंथ देखो, explain y for all a greater than 0 and a is not equal to 0। ठीक है ना?
log 1 1 to the a base is equals to 1 log a. a इक्वल टू 0। देखो बेस ए को 1 नहीं बोला है, पहले ये समझ लो इस चीज को। बेस ए को 1 1 नहीं बोला है, ठीक है ना। तो बेस ए को अगर 1 नहीं बोल रहा है, इसका मतलब क्यों ऐसा कर रहा है वो। तो अगर मैं 1 लूं, मैं आपको बता देता हूँ जरा। बेस अगर मैं 1 ले लूं, जैसे मान लो log m टू द बेस n, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, दिक्कत क्या आ रहा है कि अगर आप इसको थोड़ा अच्छे से समझेंगे, चलो इसको ए ले लेते हैं, फिर समझते हैं। ठीक है, इसको ए ले लेते हैं। तो n का वैल्यू क्या बोल रहा है, 1 नहीं होना चाहिए। n का वैल्यू क्या बोल रहा है, 1 नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करूं, n रेस टू क्या हो जाएगा, a. है ना। तो अगर n का वैल्यू 1 है, हाँ, Yes sir. तो कोई भी वैल्यू a का डालू अगर यहाँ पे, तो m का वैल्यू क्या होगा, So 1. 1 ही हो जाएगा ना। तो ये लॉगरिथमिक फंक्शन को प्रॉपर डिफाइन नहीं करता है। इनफैक्ट एक अच्छे से इसको समझो, मैं यहाँ पे एक नया टर्म डाल रहा हूँ, चेंज ऑफ बेस रूल करके एक चीज होता है। इसमें अगर आप इसको log m टू द बेस n को आप ना ठीक से लिखो, log m अपॉन n हो जाएगा वो, ठीक है। वो भी मैं बताऊंगा, बट अगर ऐसा होता है तो log 1 जो होता है 0 होता है हमेशा, ठीक है। log 1 इज ऑलवेज 0। तो ये 0 डिनोमिनेटर में हम एक्सेप्ट नहीं करते। तो इसके लिए वो क्या बोल रहा है कि a शुड नॉट बी 1, ठीक है। चलो इसको हम थोड़ा अच्छे से देखेंगे जैसे ऐसा टॉपिक आगे बढ़ेगा। बट आप ऐसा समझो कि वो 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो डिनोमिनेटर को 0 दे देगा, ठीक है। ओके, अभी ये जो दिया हुआ है वो क्या है, log 1 टू द बेस a इक्वल टू 0 है। सो यू कैन राइट a रेज टू 0 इज इक्वल टू 1, राइट, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। Yes sir. सो दिस इज ऑलवेज ट्रू ना। सो देयरफॉर वी कैन राइट दिस, Yes इज sir. ऑलवेज ट्रू। Now what about this log a to the base a is equal to 1. So again this is a is equal to a raised to 1, right? Yes sir. This is also true. So we can write this statement. Hello, hello, Yes sir. हाँ, ठीक है। Yes sir. चलो अभी नेक्स्ट जो मैं आपको बता रहा था लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में। So this is this where we can draw the logarithmic function like this. For different values of x, we have values of y, right? And if you can check that for logarithmic function, okay, this is the condition, a greater than 0 and a should not be 1, ठीक है। ये जो बेस है वो आपका नेगेटिव नहीं होना चाहिए कभी भी, एंड 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। 1 होगा तो फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होगा। आप कैलकुलेटर है ना, आप जरा चेक कर लो, कोई भी वैल्यू डालो, log ऑफ 5 टू द बेस 1, मैथ एरर देगा। वैल्यूज कोई भी ले लो, log 10, 7, बट Yes sir. Error आ रहा है. बेस 1 डालो तो मैथ एरर देगा। क्यों Yes sir. मैथ एरर देगा, क्योंकि ये जो होता है वो बेस अगर 1 करते हैं आप, तो डिनोमिनेटर को 0 बना देता है, ठीक है। इतना समझो आप। तो ये फंक्शन है, ये ग्राफ है इसका फंक्शन का, लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ है। इन्होंने भी सेम ग्राफ लिया है, y इज इक्वल टू लॉग एक्स टू द बेस 2 ही लिया हुआ है जो हमने लिया था। तो Yes. कोई भी वैल्यूज ले लो x का, राइट, but it Yes should sir. be greater than 0. X should always be greater than 0, ठीक है। आप निगेटिव का लॉग डिफाइन नहीं करोगे,
समझ में आया आपको? Yes, sir. ये भी मैथ एरर आएगा। ओके, Yes, sir. सो x शुड बी पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0 always, and the what is the range of this function? Y with all real numbers. वेरी गुड, y belongs to real। इस बार आपने फटाक से बोला। ठीक है, चलो अभी जो मैं इनवर्स फंक्शन आपको बता रहा था, देखो ये है। सो जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, दिस इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। Yes, sir. As I said, exponential function and logarithmic function are mirror image about y is equal to x line। ठीक है, तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ ऐसे होता है, सीधा आंख बंद करके ड्रॉ कर देने का। और ये लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ ऐसे होता है। ठीक है, बेस कोई भी हो, ये 1 पे इंटरसेक्ट करेगा, और एक्सपोनेंट कोई भी हो या बेस कोई भी हो, यहाँ पे भी ये भी 1 पे इंटरसेक्ट करेगा। ये चीज ध्यान में रखो। ठीक है, ये बहुत ही फेमस ग्राफ है। ए रेस टू एक्स का ग्राफ ये हो गया, एंड लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ ये हो गया। बोथ आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, जो कि आप यहाँ से देख रहे हो। ठीक है, और कैसे हमने फाइंड आउट किया था? इनवर्स फाइंड आउट करने का मैं तीन स्टेप है दैट आई वांट टू लेट यू नो। वन इज वी हैव टू इंटरचेंज एक्स एंड वाई फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, एक्स को सब्जेक्ट बनाओ। अगर आपने इंटरचेंज कर दिया है देन तो वाई को ही सब्जेक्ट बना दो, पहले इंटरचेंज कर दिया ना। देन वाई, मेक वाई एज अ सब्जेक्ट। ठीक है, एंड देन रिप्लेस वाई बाय एफ इनवर्स एक्स। ठीक है, अभी ये तीनों स्टेप फॉलो करते हैं और हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनवर्स फंक्शन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, Yes, sir. नहीं, लॉगरिथम का करते हैं। इन्होंने लॉगरिथम का इनवर्स फाइंड आउट किया हुआ है। सो लॉगरिथमिक फंक्शन इज वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स टू द बेस ए। ठीक है, this is the logarithmic function, this is the graph of that, right? Now Yes, sir. what is the first step? See, this is to find the inverse function। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखो, ये आपको 11th में भी आने वाला है। तो हाउ टू फाइंड द इनवर्स फंक्शन ऑफ द गिवन फंक्शन। ओके, तो पहला स्टेप क्या है, एक्स एंड वाई को हम क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे। Interchange. तो वाई की जगह पे एक्स कर देते हैं, एंड एक्स के जगह पे वाई कर देते हैं। फिर क्या बोला है, मेक वाई एज अ सब्जेक्ट। तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, ए रेस टू एक्स हो गया एज पर डेफिनेशन। Yes, और sir. देन लास्ट स्टेप क्या बोला है, y को रिप्लेस कर दो इनवर्स के साथ। सो एफ इनवर्स x इज इक्वल टू ए रेस टू एक्स। ठीक है, समझ में? सो दिस इज इनवर्स फंक्शन। ओके, दिस इज इनवर्स फंक्शन ऑफ द लॉगरिथमिक फंक्शन, राइट? तो Yes, sir. जो कि ये है ग्राफ। ओके, Yes, sir. इसमें आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, एक मिनट। होमवर्क ये दे रहा हूँ कि बाय प्लॉटिंग पॉइंट्स। ठीक है, बहुत ये सारे होमवर्क किया करो, हाँ, क्योंकि कुछ Yes, sir. समझ के दे रहा हूँ मैं। बाय प्लॉटिंग पॉइंट्स ग्राफ दिस फंक्शन। डायरेक्ट मत करना। ठीक है, दिस फंक्शन मीन बोथ ऑफ द फंक्शन, एक्सपोनेंशियल एज वेल एज लॉगरिथम। अब लॉग के लिए आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हो लॉग का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, Yes, sir. तो ये डाउनलोड कर लो। हाँ, चलो अभी हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज ही इसी पे डिपेंड कर रहा है। आगे बढ़े। Yes, sir. We have to find out inverse function of this function, whatever the function it is. It may be exponential function, it is logarithmic also. So we have to just find out inverse of this function। Okay, तो steps तो आपको पता है ना, 3 स्टेप। Yes, sir. तो चलो बताओ, अभी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 रेस टू एक्स है ना।
अब स्टेप में मैंने तो एक्स और वाई के बारे में डिस्कस किया, तो एक्चुअली यही वाई है। ठीक है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यही एफ ऑफ एक्स ही वाई होता है ना। दिस इज कॉल्ड फंक्शन, राइट। सो वाई इज इक्वल टू फोर रेस टू एक्स है। अभी कैसे करोगे, पहला स्टेप क्या है? एक्स को इंटरचेंज करो वाई से। हाँ, तो एक्स इज इक्वल टू फोर रेस टू, वाई। एंड देन सेकेंड स्टेप क्या है? मेक वाई एज अ वाई फंक्शन। को बनाओ। So y is equal to log 4, log base 4 to the base, sorry, log in base 4 of x. And then third step क्या है? Replace y by एफ ऑफ एक्स inverse। वन बाय एक्स। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, थर्ड वन। लोग उसको उतना वैल्यू नहीं देते, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप ऐसे ही छोड़ दोगे तो y का भी वैल्यू यही है, log x, log x to the base 4, और y का वैल्यू ही 4 raised to x है। हाउ इज इट पॉसिबल? आप एक ही y को आप दो वैल्यू कैसे दे सकते हो? आप बात समझ रहे हो ना? यस सर। इसलिए लास्ट स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स टू द बेस फोर। ठीक है, चलो अभी आप ये क्या हो गया, आप कोई भी एक करो इसमें से, सी करो चलो। सी पार्ट थ्री की पावर माइनस एक्स। इनवर्स फाइंड आउट करना है। यस सर। आंसर मैंने लिख के, ओके सर, एक सेकंड। यस सर। डिड यू गेट दिस? नो सर, गलत था। गलत था? यस सर। अभी समझ गए ये चीज कैसे किया है मैंने? यस सर। देखो यहाँ थोड़ा इम्पोर्टेंट था करना, बिकॉज अगर आप y को पॉजिटिव नहीं बनाओगे तो फिर वो थोड़ा बाद में वो दूसरा रूल यूज करना पड़ता है, जो अभी हमने किया ही नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए y को पॉजिटिव बनाने के लिए तो हम ऐसा रेसिप्रोकल ले सकते हैं ना। यस सर। हाँ, चलो इसमें कौन सा और करोगे, डी कर दोगे? यस सर। करो। अच्छा, डी आप करना। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, मैं आपको फोर्थ बता दूं, नहीं तो आप फोर्थ पे अटक सकते हो। ठीक है, क्योंकि यस। सेकेंड थर्ड आप ट्राई करना, फोर्थ में आपको बता देता हूँ। टाइम कम है तो आपका थोड़ा ये दो एक्सरसाइज तो करके रखोगे कम से कम। ठीक है, यस सर। इसमें क्या बोला हुआ है कि वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, यूज अ लॉगरिथमिक फंक्शन ऑन योर ग्राफिक कैलकुलेटर टू solve the following equation correct to three significant figures, right?
तो अपने को किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। और ग्राफिक कैलकुलेटर का यूज बोला है करने के लिए, तो मैं ग्राफिक कैलकुलेटर की जगह डेस्मोस का यूज करूंगा, क्योंकि मेरे पास नहीं है ग्राफिक कैलकुलेटर, ठीक है। तो यस सर। डेस्मोस के लिए क्वेश्चन आप जरा नोट कर लो, क्या है लॉग, अच्छा बुक तो है ही आपके पास ना, ठीक है, यस सर। जस्ट ठीक है, ये ग्राफिक डेस्मोस है, ओके। अभी पहला क्वेश्चन क्या दिया, लॉग, तो दो ग्राफ ड्रॉ करूंगा, ये ध्यान में रखो, दो ग्राफ ड्रॉ करूंगा, एक y इज इक्वल टू log x टू द बेस 10, ठीक है, log x टू द बेस 10। तो बेस 10 अगर नहीं लिखते तो बेस 10 अंडरस्टूड होता है। इफ यू डोंट राइट बेस 10, यस सर। if you don't write any base, it is understood that you are taking base 10, ठीक है। ओके सर। फिर नेक्स्ट है y इज इक्वल टू 3 3 माइनस। माइनस एक्स। तो जैसे ही आप ये दो ग्राफ ड्रॉ कर दो, ये एक लेफ्ट हैंड साइड का ग्राफ, एक राइट हैंड साइड का ग्राफ, दोनों इक्वल है, दोनों क्या है, इक्वल दिया इक्वल। ना, इक्वल साइन दिया ना बिटवीन, तो इक्वल है, इसका मतलब जो जहां पे दोनों ये ग्राफ इक्वल है, मतलब जहां पे दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दैट इज द सॉल्यूशन। डू यू अंडरस्टैंड? यस सर। तो ये दोनों ग्राफ यहाँ पे इक्वल है, इस वैल्यूज पे इक्वल है, इट मीन्स दिस इज आवर सॉल्यूशन 2.587। एम आई क्लियर? यस सर। ओके, तो इसी बेस पे आप पूरा ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकते हो, एक्सरसाइज 31B, ओके। नाउ विल यस। डील विथ योर डाउट्स इन नेक्स्ट क्लास, and then we'll start with the rules, like how to add two terms, division, multiplication kind of, okay. ओके सर। Bye bye. बाय सर।